Hello everyone, from this video lecture we are going to discuss about the remaining part of plant tissue, and in previous video lecture we have discussed about all the simple permanent tissue, that is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So now we are going to discuss about the complex permanent tissue. Complex permanent tissue. So about the complex permanent tissue, and we will also discuss about some other tissue except these classified tissue, that is simple as well as complex permanent tissue, and that are about the protective tissue. So complex permanent tissue, as we have can define it, made up of more than one type of cell. In simple permanent tissue we have discussed as similar kind of cell together form the simple permanent tissue. But in complex permanent tissue, more than one type of cell together form the complex permanent tissue. And in complex permanent tissue, we will discuss about two tissues. One is two types. One is xylem and the other is phloem. And together they make the vascular bundle. The plant with complex body organization have vascular bundle, which is a feature of complex body organization. Complex body organization का ये feature है presence of vascular bundle, and vascular bundle is made up of vascular tissue, and these are xylem and phloem. These complex permanent tissue are also known as vascular tissue. तो हम अदर वर्ड में vascular tissue भी बोलते हैं, also known as vascular tissue. Complex permanent tissue are also known as vascular tissue. तो हम vascular tissue बोलते हैं because they make a vascular bundle. Vascular term it is related to transportation. ऐसे सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनकी को हम वैस्कुलर टर्म देते हैं। तो यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही जो है ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट बॉडी, तो इसलिए इनको हम जो है वैस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। एंड दे मेक द वैस्कुलर बंडल, ये वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं ये आप जो है पहले भी बता चुके हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ रहते हैं और प्लांट में थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ये रन करते हैं, रूट स्टेम एंड लीव्स तीनों में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ जाइलम की। पहला जो फर्स्ट सर 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 मीटिंग अनलॉक कर दीजिए सर, एक लड़का है सर कह रहा है आने के लिए, आए नहीं। so about the component of xylem, and we have discussed that there are four components of xylem, four component, and these are xylem tracheids, xylem vessel, xylem parenchyma, and the fourth one is xylem fiber. So xylem parenchyma and xylem fiber, these are the simple permanent tissue, type of simple permanent tissue. ये simple permanent tissue के सेल होते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ रहते हुए जाइलम ट्रैक्ट और वेसल से जुड़े रहते हैं, इसलिए जाइलम के ही कंपोनेंट कहलाते हैं। बट द एक्चुअल फीचर एंड फंक्शन ऑफ द
जाइलम पैरेन्काइमा इट इज सिमिलर टू द सिंपल परमानेंट टिश्यू एज वेल एज जाइलम फाइबर, फाइबर का भी वही से होता है। तो ये सभी जो है इसके कंपोनेंट है एंड टुगेदर दे आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, transport of water from root tip. Root tip is the place where the absorption of water take place from soil. Soil से water का absorption होता है. So from the root tip to the shoot tip. Shoot top involve both stem as well as leaf. Stem और leaf दोनों को के लिए जो है टर्म जो यूज किया जाता है इट इज shoot. Or we can say that in other words, the aerial part of plant. Aerial part of plant का जो टिप होता है, उस टिप पे जो है last transportation complete होता है, and from that tip the water get evaporated, or the term used in the case of plant it is transpiration. तो वहाँ पे जो है transpiration हो जाता है opening of plant body से। तो इस तरह से जाइलम जो है अपना रोल प्ले करता है विद 4 काइंड ऑफ सेल्स, 4 तरह के सेल इसमें पाए जाते हैं जिसको हम कंपोनेंट ऑफ जाइलम भी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, and there are 4 components also in the case of phloem. The one is seed tube, companion cell, phloem, parenchyma, and phloem fiber. So same as the xylem tissue, in phloem also there are 4 components, and out of 4, 2 are different from the other tissue of the plant body, but the 2 others, that is phloem parenchyma and phloem fiber, ये दोनों जो है ये सिमिलर है, सेम एज जाइलम टिश्यू। इसमें भी पैरेन्काइमा और फाइबर जो होते हैं ये सपोर्टिव नेचर के होते हैं। As we have discussed that simple permanent tissue is also known as supportive tissue. तो ये जो है फ्लोएम को सपोर्ट करने का काम करते हैं। पैरेन्काइमा एंड फाइबर, ऐसे ही पैरेन्काइमा एंड फाइबर इन जाइलम, जाइलम को भी सपोर्ट करने का काम करते हैं, जो उनका मेन वर्क होता है। तो इस तरह से फ्लोएम का भी जो रूट होता है इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ product of photosynthesis to storage region or to storage part of the plant. So from the place of photosynthesis the food is to be transported at the place of storage in plant bodies. Plant body में जो storage part होता है, स्पेशली जो है रूट एंड स्टेम, ये दोनों जो है स्टोरेज पार्ट होते हैं। यहाँ के जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं वह फूड स्टोरेज का काम करते हैं, तो वहाँ तक ले जाने का काम जो टिश्यू करता है दैट इज द फ्लोएम टिश्यू। तो इसमें जो है 4 कंपोनेंट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। तो ये जो है सपोर्टिव नेचर के होते हैं, मींस पैरेन्काइमा एंड फाइबर दोनों ही केस में जाइलम एंड फ्लोएम में भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। मींस मेन फंक्शन तो इनका जाइलम के केस में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है, बट फ्लोएम के केस में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, बट द अदर कॉमन फंक्शन क्या है, इट इज आल्सो टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मींस प्लांट बॉडी में जितने भी टिश्यू होते हैं दे ऑल आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करने के होते हैं।
क्योंकि प्लांट को स्टैंड करना रहता है एक सिंगल प्लेस में थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ जो है एक जगह पे रहना होता है, इसलिए इनको ऐसे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बात करते हैं स्पेशल टिश्यू के बारे में, जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। Along with the classification of classified types of plant tissue as meristematic tissue and permanent tissue, दो तरह के हम लोग पढ़ चुके हैं। परमानेंट में भी जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। So beside these, some other tissue also found in plant body as in the form of protective tissue and secretory tissue। प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सेक्रेटरी टिश्यू, सेक्रेटरी जो होते हैं वो सिक्रीट करने का काम करते हैं, जैसे प्लांट बॉडी से जो है गम्स निकलते हैं, रेजिन निकलते हैं, ऑयल निकलता है, तो ये सारे जो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जिस प्लांट टिश्यू से, उसको हम बोलेंगे सेक्रेटरी टिश्यू। एंड सम टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन प्लांट बॉडी, प्रोटेक्शन फॉर प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो इन प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू, so protective tissue are responsible for providing protection, and under this category or these tissue we will discuss two kind of tissue. One is epidermis, another is the second, that is pore। ये दो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट बॉडी। अब पहले बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या होता है और इसका क्या रोल होता है, कंपोजिशन क्या है। तो एपिडर्मिस इज फाउंड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। ये तीनों ही स्ट्रक्चर में, प्लांट की तीनों स्ट्रक्चर में, लीफ, स्टेम एंड रूट, तीनों ही पार्ट में जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सेल का, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल सेल का लेयर होता है आउटर मोस्ट लेयर, उसी को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एंड एपिडर्मिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट बॉडी। एंड इसमें होता क्या है, इस तरह से to provide protection। तो एपिडर्मिस का एक स्पेशल फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वाटर इम्परवियस सब्सटेंस होता है जो कि एपिडर्मिस के सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। एंड दिस मेक कवरिंग अराउंड द एपिडर्मिस और एट द आउटर साइड ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का जो आउटर साइड होता है, जैसे हम लोग लीफ की बात करें या स्टेम की, तो एपिडर्मिस कुछ इस तरह से होता है। The cells are dumbbells and at the outer side of epidermis there is a layer of cuticle। ये आपका epidermis हो गया, and outer side of epidermis require cuticle, and cuticle provide protection to the plant body। So cuticle over the epidermis is responsible to provide protection to the plant body or cells of the cuticle।
And epidermis, the special feature of epidermis in the case of stem root as well as the leaves, it is in leaves. The epidermis contains stomata. Epidermis of leaf contains stomata. स्टोमेटा भी पाया जाता है एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में। इसके अलावा जो है एपिडर्मिस ऑफ रूट कंटेन रूट हेयर। तो ये दो स्पेशल फीचर है लीफ के केस में। एपिडर्मिस ऑफ लीफ कंटेन स्टोमेटा एंड एपिडर्मिस ऑफ रूट कंटेन हेयर। तो स्टोमेटा क्या होता है? इट इज द ओपनिंग। स्टोमेटा इज एन ओपनिंग। स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस ऑफ लीफ में ओपनिंग होता है एंड मोस्टली दे आर प्रेजेंट एट द लोअर एपिडर्मिस। लोअर एंड अपर एपिडर्मिस दो लीफ का दो सरफेस होता है। जब लीफ को आप ऑब्जर्व करेंगे तो कॉनकेव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस दो सरफेस होगा, जिसमें कॉन्वेक्स सरफेस जो है अपर साइड में होता है, कॉनकेव सरफेस नीचे की तरफ होता है। तो नीचे वाला जो सरफेस होता है उसको हम लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं एंड एट द लोअर एपिडर्मिस मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट। इसके पीछे रीजन क्या होता है? बिकॉज to protect the stomata or opening of stomata from the dust particle as well as the other substances to block the opening को ब्लॉक करने से बचाने के लिए लोअर सरफेस पे स्टोमेटा। अबाउट द कॉर्क, ये था आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की ये सारे फीचर्स होते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। इसके ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है इसलिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Next, that is the cork, and cork is the layer of tissue which is present below the epidermis due to the removal of epidermis in the case of old stem। old stem में क्या होता है? मोस्टली ये जो फीचर है इट इज प्रेजेंट इन स्टेम पार्ट में होता है and if due to removal of epidermis in the case of old stem, the stimulation of formation of secondary meristem in cortex region which is known as cork cambium, जिसको हम cork cambium बोलते हैं या फेलोजन बोलते हैं। Produced by कैम्बियम। कैम्बियम जो है दो तरह का होता है, बताया गया था आपको, लैटरल मेरिस्टेम और कैम्बियम इज आल्सो नोन एज फेलोजन। और कैम्बियम इज आल्सो नोन एज फेलोजन। लैटरल मेरिस्टेम टू टाइप्स के, one is cambium which is present between the vascular bundle and the other is cork cambium which is present in cortex region। तो cortex region में present, तो cork cambium और फिलेट जो है यही बनाते हैं cork। अब cork को कैसे बनाते हैं तो देख लीजिए। जब ये cork cambium क्रिएट होता है तो पहली बार ओरिजिनेट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। इसके लिए डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है क्योंकि वहां पे कभी भी उस प्लेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, cork cambium इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्टेम में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉर्टेक्स रीजन में नहीं पाया जाता। वो जो है परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा रहता है और पैरेन्काइमा किससे बने होते हैं? डिफरेंशिएशन प्रोसेस फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अगेन जब पैरेन्काइमा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन।
So due to dedifferentiation, the for a parenchyma of cortex region becomes converted to the कॉर्केमियम और फेलिन। और कॉर्केमियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें सेल डिवीजन की एबिलिटी ग्रो हो जाती है, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो इस तरह से इसमें पॉसिबल होगा और इसके लिए सेल डिवीजन के लिए सेल डिवीजन इसमें स्टार्ट होता है। एंड ड्यू टू सेल डिवीजन द लेयर ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड इन आउटर साइड एज वेल एज इनर साइड, जो कॉर्केमियम होगा वह बाहर की तरफ भी सेल बनाएगा और अंदर की तरफ भी सेल इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करेगा। स्टेम के देखिए सपोज देखिए आपका स्टेम है एंड बीच में जो है वैस्कुलर बंडल है और साइड साइड में जो है ये जो है कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स में ओरिजिनल की तरफ क्या है, एपिडर्मिस है, सबसे बाहर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जब रिमूव होता है तो उसकी जगह पे जो है यहाँ पे कॉर्केमियम ग्रो हो जाता है। कॉर्टेक्स रीजन दूसरे होते हैं इसमें डिफरेंशिएशन होता है और ये बन गया कॉर्केमियम, इसको हम फेलोजन बोलेंगे। कॉर्केमियम और फेलोजन बन गया। अब इसमें जब डिवीजन होगा तो सपोज ये सेल का लेयर है, तो सेल को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ में जो है कट ऑफ करेगा। एक लेयर बाहर की तरफ बनेगा, एक लेयर अंदर की तरफ बनेगा ड्यू टू कॉर्केमियम। तो जब इसमें डिफरेंशिएशन होगा और डिफरेंशिएट करके ये फिर से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो लेयर है जब मोर देन वन लेयर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा तो लास्टली ये जो है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। सो दैट परमानेंट टिश्यू टुवर्ड्स आउटर साइड मेक द कॉर्क। वही जो है जब कॉर्केमियम या फेलोजन डिवाइड करेंगे तो बाहर की तरफ जो सेल का लेयर बनेगा वो डिफरेंशिएट होकर के जो है बनाएंगे कॉर्क। दैट डिफरेंशिएट टू फॉर्म कॉर्क। और कॉर्क की प्रॉपर्टी क्या होती है, द सेल्स ऑफ कॉर्क has deposition of suberin in their cell wall। कॉर्क के सेल जितने भी होते हैं उनके सेल वॉल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके सेल वॉल में एक वैक्सी केमिकल, वैक्सी सब्सटेंस ग्रो हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सुबेरिन। और ये सुबेरिन करता क्या है, इट इज वाटर रेजिस्टेंट, heat resistant as well as also provide protection from microbes and other animals। ये माइक्रोब्स और अदर एनिमल्स से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, मतलब उसको रिपेलेंट होता है, माइक्रोब्स एंड एनिमल रिपेलेंट होता है, जिसकी वजह से सुबेरिन की वजह से स्टेम को कोई भी माइक्रोब्स इन्फेक्ट नहीं करता है, पैथोजन उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है। इसके अलावा ये वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं और हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं। मीन्स बाहर का जो वाटर हीट होता है वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। एंड अदर फीचर इन्वॉल्व द cork can also contain the opening which is known as lenticell, also contain the openings called lenticell। So lenticell which is present in stem for exchange of gases
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए स्टेप रीजन में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वह इसी ओपनिंग के थ्रू होता है, लेंट्री सेल के थ्रू, क्योंकि इसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, तो स्टोमेटा की जगह पे इसमें लेंट्री सेल होते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ कॉर्क, कॉर्क के ही पार्ट होते हैं। तो इस तरह से कॉर्क का जो है प्रोटेक्शन में भी रोल होता है, उसके अलावा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ये करते हैं। So this is all about the cork as well as epidermis, which are the protective tissue in plant body. Plant body में protective tissue का role play।